So hello everyone, welcome to Eclore, the platform where students could enhance their learning with the high quality videos with their simplified notes. So today we will discuss the concept of supply. So in this lecture we would understand the concept of supply. That means we would introduce the concept. I'll introduce the concept. Then we would understand the difference between the stock and supply. We would try to understand the law of supply, supply schedule and supply curve, and the factors determining supply of the commodity, right? So first, let's understand the supply. So supply is the amount offered for a sale at a given price, right? So एक producer एक price पे कितने units बेचना चाहता है, that is nothing but a supply. So amount offered for a sale, by a producer at a given price, that is nothing but a supply of the commodity, right? So say for example, if the price of the commodity is 20 rupees, and at that 20 rupees for a per unit of the commodity, the producer is willing to sell 500 units of the commodity. हम ये कह रहे हैं कि अगर 20 रुपए का प्राइस है तो 500 यूनिट्स की सप्लाई एक कमोडिटी की मार्केट में है. दैट मीन्स 500 यूनिट्स producer are willing to sell in the marketplace. So that is the supply, right? So that is amount offered for a sale by a producer at a given price. That is supply. So that is about introduction. If we understand, there's a difference between stock and supply. अगर हम stock और supply की बात करें तो इन दोनों चीजों में फर्क है. स्टॉक एक पॉइंट पे मेजर किया जाता है, वहीं पे जो सप्लाई जो है एक फ्लो कॉन्सेप्ट है. दैट मीन्स सप्लाई कुड बी इंक्रीज और डिक्रीज. सप्लाई कुड बी इंक्रीज और डिक्रीज, उसको चेंज किया जा सकता है. बट स्टॉक इज इन द फिक्स क्वांटिटी और वो एक पॉइंट पे उसे मेजर किया जाता है, राइट? सो इफ आई से दैट 500 यूनिट्स, देयर इज अ स्टॉक ऑफ 500 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी. इफ आई एम अ प्रोड्यूसर, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं कह रही हूं कि जो भी सामान है, जो भी कमोडिटी है, उसके 500 यूनिट्स मेरे पास है. दैट इज द स्टॉक. 500 यूनिट्स का स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है. दैट मीन्स ये अमाउंट ना इंक्रीज हो सकती ना डिक्रीज हो सकती है. इंक्रीज नहीं हो सकती, नॉट डिक्रीज. सो ये बस दिस इज द अमाउंट, दिस इज द स्टॉक जो मेरे पास अभी है. अगर मैं कह रही हूं कि 500 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी का सप्लाई है, सो दैट 500 यूनिट्स कुड बी इंक्रीज और कुड बी डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट का डिमांड क्या है, उसके बेसिस पे ये जो नंबर है घटाया और बढ़ाया जा सकता है. सो इसे हम सप्लाई कहते हैं. स्टॉक जो है फिक्स क्वांटिटी में है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. इफ द 500 यूनिट्स ऑफ द स्टॉक इज देयर, then the 500 is not going to be 501, right? So that there's a difference between the stock and supply. If we talk about law of supply, before understanding law of supply, we first understand supply schedule and supply curve. So what is supply schedule? Supply schedule is a list of prices and the different quantities which are offered by a producer for a sale, right? So say for example, this is the price of the commodity and this is the supply, right? So say we have 4, 6, 8, 10 and 12, and let's supply be 3, 6, 9, 12 and 15. All right, so let it be. All right, no worries. So this is price and this is supply, right? Different prices पे सब कितनी different prices पे एक commodity की कितना सप्लाई जो है मार्केट में है, या प्रोड्यूसर इस इन डिफरेंट प्राइस पे कितना बेचना चाहते हैं, हाउ मच यूनिट्स दे आर विलिंग टू सेल इन द मार्केट प्लेस, दैट इज अ सप्लाई. सो हम ये कह रहे हैं कि 4 रुपीज अगर प्राइस है पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी, सो 3 यूनिट्स जो है सप्लाई है. दैट मीन्स जो प्रोड्यूसर है 3 यूनिट्स मार्केट में बेचना चाह रहे हैं. जैसे जैसे यहाँ पे प्राइस बढ़ रही है, द सप्लाई इज इंक्रीजिंग. व्हाई? The producer is here to make a profit. Producer market में क्यों ऑपरेट कर रहा है? Because producer profit कमाना चाहता है, right? So ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा सप्लायर्स जो होंगे विलिंग होंगे टू सेल दैट प्रोडक्ट, राइट? सो एज प्राइस इंक्रीजेस, आप देख रहे हो कि अगर प्राइस 12 रुपीज पहुंच गया, जो सप्लाई है वो 15 यूनिट्स हो गया, राइट? व्हाई? बिकॉज इस प्राइस पे बहुत से प्रोड्यूसर्स अपना जो सामान है, अपनी जो कमोडिटी है वो बेचना चाहते हैं, राइट? सो दिस इज द सप्लाई शेड्यूल.
सप्लाई शेड्यूल एक लिस्ट है जिसमें डिफरेंट प्राइजेस हैं और डिफरेंट यूनिट्स हैं जो प्रोड्यूसर बेचना चाहता है इन द मार्केट प्लेस एट द गिवन प्राइजेस. दैट इज द सप्लाई शेड्यूल. लॉ ऑफ सप्लाई की बात करें, सो लॉ ऑफ सप्लाई exhibits positive relationship between the price and the quantity supply. That means with an increase in the price, there is an increase in the quantity supplied of the commodity. That is nothing but the law of supply, right? जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर अपना जो कमोडिटी है उसे मार्केट में बेचना चाहते हैं, राइट? सो that is nothing but the law of supply. With an increase in the price, there is an increase in the quantity supplied, right? So that is about the supply. This is supply schedule. This is law of supply. And if we understand the diagrammatic representation of the supply schedule, so here there would be price, here there would be supply, and the curve would be something like this. That means with an increase in the price of the commodity, more and more producers are willing to sell their product at the marketplace. So thereby there's a positive relationship between the two variables. बात करें फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई के, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. फर्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म. अगर ऑब्जेक्टिव फर्म का ये है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सेल्स करनी है, राइट, दैट मीन्स वो मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा वो अपनी सेल्स बढ़ाना चाहता है, राइट. सो अगर ऑब्जेक्टिव ये है फर्म का, then the supply of that particular firm would be very large, right? But अगर फर्म का ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि सेल भले कम हो बट वो एक एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहता है, दैट मीन्स वो ज्यादा प्राइस पे प्रोडक्ट बेचना चाहता है, भले ही कम लोगों को बेचे पर ज्यादा प्राइस पे बेचना चाहता है, ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो उसकी सप्लाई लिमिटेड होगी. बट वहीं पे अगर कोई प्रोड्यूसर ऐसा है कि वो भले प्रॉफिट कम हो एक प्रोडक्ट पे, पर वो ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहता है, नो मैटर थोड़े कम प्राइस पे पहुंचाए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता है, देन अगर वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, देन द सप्लाई वुड बी लार्ज फॉर दैट पर्टिकुलर फर्म. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी है. अगर फर्म के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे फर्म कम प्राइस पे ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है, देन द सप्लाई वुड बी लार्ज फॉर दैट पर्टिकुलर फर्म. पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्शंस वगैरह चल रहे हैं या कुछ भी पॉलिटिकल राइट्स चल रहे हैं, कोई इश्यूज चल रहे हैं, उसके कारण क्या होता है कि जनरली ट्रेड एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट होती है और उसके कारण जो सप्लाई है कि रॉ मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिनिश गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी अफेक्ट होता है अगर इस टाइप के डिस्टर्बेंसेस इश्यूज अगर सिटी में चलते हैं, राइट. सो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस कुड अफेक्ट द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी. गवर्नमेंट पॉलिसी, से फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्ट पे इंक्रीज कर दी. तो व्हाट इज द एक्साइज ड्यूटी, कि जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है उस पर कुछ टैक्स जो है प्रोड्यूसर को पे करना है, दैट इज एक्साइज ड्यूटी. अगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई सो क्या होगा, प्रोड्यूसर का कॉस्ट बढ़ गया, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो प्रोड्यूसर का जो कॉस्ट है वो बढ़ गया. सो नाउ द प्रोडक्ट बिकम्स प्राइजी. सो अब वो ज्यादा प्राइस पे वो कम प्रोडक्ट सेल कर पाएगा. वाई? क्योंकि प्रोड्यूसर का भी एक लिमिटेड बजट है और प्रोड्यूसर को उस लिमिटेड बजट के अंदर ही खेलना है, राइट. सो विद दैट इंक्रीज इन कॉस्ट, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई. सो अब प्रोड्यूसर को क्या होगा कि उस प्राइस पे, उस कॉस्ट पे वो कम प्रोडक्ट्स ही बेच पाएगा. सो इससे क्या होगा कि जो सप्लाई है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा. सो दैट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी. फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस, सप्लायर प्रोड्यूसर्स को लग रहा है कि आने वाले टाइम में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं. सो वो क्या करेंगे कि अभी सप्लाई कम कर देंगे या अभी जो है कुछ भी सप्लाई में चेंजेस नहीं करेंगे, वो उस टाइम का वेट करेंगे कि जब प्राइसेस बढ़ेंगे. और जब प्राइसेस बढ़ेंगे फ्यूचर में, दे वुड इंक्रीज देयर सप्लाई, दे वुड इंक्रीज देयर प्रोडक्शन टू एंजॉय दैट हाई प्राइसेस, राइट. सो दैट इज द फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस. इंडस्ट्रियल पीस फॉर एग्जाम्पल हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं कि आज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के वर्कर्स ने हड़ताल कर दी. सो इस तरीके का अगर इंडस्ट्री में पीस नहीं होता, राइट्स चल रहे हैं, दंगे चल रहे हैं, स्ट्राइक्स पे हैं, सो दैट कुड अफेक्ट द सप्लाई. इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाती, सप्लाई भी जो है उसमें भी काफ़ी डिस्टर्बेंसेस इन रायट्स या इन इश्यूज के कारण, कियोस के कारण आता है. सो इंडस्ट्रियल पीस इज इट्स रियली नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी.
नेचुरल फैक्टर्स की अगर हम बात करें, इफ फॉर एग्जाम्पल हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें, अच्छी बारिश हुई इस साल, अगर बहुत अच्छी बारिश हुई, सो द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, सप्लाई ऑफ द एग्रीकल्चर कमोडिटी वुड बी वेरी लार्ज, राइट? अगर सूखा पड़ा, बारिश सही से नहीं हो सकी, so then the supply of that particular commodity would be bit less, right? Prices of the factors of production. So say for example कि अगर कोई एक टेक्सटाइल फर्म है, राइट? सो टेक्सटाइल फर्म है, वो रॉ मटेरियल यूज कर रही है, कॉटन के प्राइसेस बढ़ गए, कॉटन के प्राइसेस बढ़ गए, उसके कारण जो है अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गया, राइट? सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के कारण क्या हुआ? प्रोड्यूसर का बजट लिमिटेड है, अब उस कॉस्ट पे जो प्रोड्यूसर है वो लिमिटेड सप्लाई ही कर रहा है, लिमिटेड यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पा रहा है, राइट? सो देयर बाय जो प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो भी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कम हो गया, से फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, कॉटन का प्राइस कम हो गया, सो नाउ प्रोड्यूसर उस कम प्राइस पे ज़्यादा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर की कम हो गई, जिससे अब वो ज़्यादा यूनिट्स उसी बजट में ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है, ज़्यादा सप्लाई कर सकता है। सो द प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की अगर जो भी कमोडिटी सेल हो रही है मार्केट में, अगर उसका प्राइस बढ़ता है, मोर प्रोड्यूसर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स जो है मार्केट में एंटर करेंगे और जो है अपनी कमोडिटी को बेचेंगे, राइट? सो दैट वुड बी एन इंक्रीज इन द प्राइस, देयर वुड बी एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स, दो कमोडिटीज हैं, कमोडिटी ए है, कमोडिटी बी है। हो सकता है कि प्रोड्यूसर अभी कमोडिटी ए प्रोड्यूस कर रहा है, बट व्हाट हैपन कि प्रोड्यूसर बी का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया। प्रोड्यूसर ए ने सोचा कि प्रोड्यूस ए का प्रोडक्शन बंद करो, हम तो बी का प्रोडक्शन करते हैं। सो व्हाट हैपन विद एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बी, जो सप्लाई है बी कमोडिटी का वो भी बढ़ गया। सो दैट इज द प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स। नंबर ऑफ फर्म्स, जितनी ज़्यादा फर्म्स होंगी किसी एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, जितनी ज़्यादा फर्म्स होंगी उतना ही ज़्यादा जो है सप्लाई होगा इन द मार्केट प्लेस, राइट? बिकॉज एज मोर एंड मोर firms increase in the marketplace, there would be a large supply, right? So I hope you understand the concept of supply.